Hey guys, what's up? So in the last class we have just started the fluid mechanics and we have seen the angular deformation, we have discussed about the shear strain, and we have reached a point when we were gonna discuss about the no slip condition. Okay, so in this video we are gonna start about the no slip condition, discuss what it is, and we are gonna see the next theory part, whatever is there in the fluid mechanics section. Again, is this video is for the chemical engineers, the mechanical engineers, and the production engineers, basically those engineering students who have fluid mechanics in them. Obviously CSC के लिए तो नहीं होगा. तो yeah, uh, the number of parts the course will have, that's the amount of the parts where the full course will be discussed. So yeah, um, let's begin. So we are discussing about the no slip condition. Okay, so actually what the no slip condition means. Okay, suppose this is a stream of water. Okay, let me take a rough sheet. This is a stream of water and this is a boat. Okay, now वी आर seeing it from the upward direction. मतलब ये हम ऊपर के डायरेक्शन से देख रहे हैं ये जो बोट है. ठीक है. Now let us consider a sideways view and let us consider this as a layer of water. Okay, let us take a boat above the water. Let the boat be this. Okay, now when the boatman when the boatman जब वो चप्पू चलाएगा और जब वो फोर्स यहाँ पे देगा, तब what he is doing, he is actually giving some shear stress in this direction. Okay, जब ये shear stress इस डायरेक्शन से देगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ की मदद से ये वाला बंदा जो है ये सामने जाएगा. ठीक है. अभी होता क्या है पता है, इसके नीचे का जो कांटेक्ट वाला जो वाटर है, हाँ, ये पार्ट जो वाटर है जो कि बोट के इस वाले लेयर ऑफ वाटर से जो पार्ट कनेक्टेड रहता है ये वाला, ये आगे जाता है. ठीक है. एंड जब ये आगे जाता है ना, बिकॉज ऑफ द रीज़न इट्स ए फ्लूइड, तो साइड के जो मतलब वाटर पार्टिकल्स है वो इसको रोक नहीं पाते. जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हमने बोला था, हमने डिस्कस किया था कि एक मेटल सरफेस में अगर हम लोग किसी एंगल से शेयर स्ट्रेस देते हैं, ठीक है, टाउ वाला शेयर स्ट्रेस देते हैं, तो एक पॉइंट के बाद ये रुक जाता है. ठीक है. लेकिन वाटर में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द रीजन देयर इज़ मोर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जब हम लोग शेयर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में देते हैं तब ये वाला जो पार्ट होता है वो सिर्फ डिफॉर्म करते रहता है. ये वाला पार्ट जो बोट के साथ कनेक्टेड होता है वो इस वाले डायरेक्शन से इस वाले डायरेक्शन तक जा सकता है और हमको कोई डिफॉर्मेशन में कोई भी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट इट इज़ वाटर एंड नॉट मेटल. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज द नो स्लिप कंडीशन. ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. अगर ये वाला पार्ट, हाँ, अगर ये वाला पार्ट वाटर के यहाँ तक है, कंसिडर दिस एज द ओरिजिन. ओके, दिस एज द ओरिजिन. अगर हम लोग चप्पू चलाते हैं, ठीक है, अगर ये जो बोटमैन अगर ये चप्पू चलाता है और अगर इस डायरेक्शन में एक शेयर स्ट्रेस आता है, ओके, नाउ द वाटर present in the contact the water present in the contact of the boat is gonna move from this direction to this direction. Okay, now basically what is happening, the boat is there. Okay, the boat is here and the water whatever was in this direction, this has came from this part to this part. Okay, so the total deformation is like this. If we
consider this was the theta. Suppose this is the origin. Okay, this was the theta 1. Now we can see that the theta 2 is this. If the boat was in this direction, matlab if the boat was here, then the theta 3 would be, the theta 3 would be considered from this, right? So basically we can see that there is no amount of resistance from the water itself, because it's obviously because it's water. Okay, the microphone is on. I have just checked that. Now coming to the original side, so yeah, this is what the no slip condition is. Okay, now consider that it was in suppose this is the origin. Okay, let us name it as O. This was the boat in this direction. Let the boat go there. Give it the name of 2 dash. Okay, it was in 1 dash, means the position of the boat here was 1 dash. When the boat is here, you can name it as 2 dash. When the boat was there, you can name it as 3 dash. When the boat was there, you can name it as 4 dash. Okay, let me write it. Okay, when the boat was there, name it 3 dash. When the boat was here, name it 4 dash. Okay, so this is where the force on water is there because of the chappu, okay, by the boatman. Okay, let this area be fixed, and yes, this is the deformation that happens. Okay, this is the deformation that happens. Okay, so yeah, let's write some points. Let's write it together. Okay, a fluid deforms continuously under the influence of shear stress, no matter how small. Okay, हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक मेटल में हम अगर शेयर स्ट्रेस देते हैं तो एक पॉइंट के बाद वो वाला शेयर स्ट्रेस मतलब रुक जाता है, वो वाला रेजिस्टेंस आ जाता है ड्यू टू द मेटल सरफेस, लेकिन फ्लूइड में वो वैसा नहीं होता है. ओके, ए फ्लूइड deforms continuously under the influence of shear stress, no matter how small. Okay, let us write the next point. In fluid, stress is proportional to strain rate. ओके, ये वाला लिख के डिस्कस करते हैं, ठीक है. इन फ्लूइड्स stress is proportional to strain rate tau, directly proportional to d theta by dt during steady state का मतलब क्या है? steady state का मतलब क्या है? जब वाटर स्थिर है, ठीक है. when there is no मतलब टनल फ्लो नहीं हो रहा है, वाटर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है. when the water is still like a cool boy, उसको हम steady state बोलते हैं, ठीक है. अभी टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी. डी थीटा क्या था, याद करो. डी टी था, हमने बोला था ना कि मेटल जितना एंगल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफॉर्म करता है उसको हम डिफॉर्मेशन के एंगल को हम थीटा बोलते हैं, ठीक है. और टाउ क्या था? टाउ था
shear stress, राइट। तो अरे यार, यहाँ पे डिस्कस किया था ना, टाउ क्या था, टाउ वाज द shear stress एंड थीटा क्या था, थीटा वाज द एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन। ओके, सो यप, d theta directly proportional to d theta by dt. In fluids, stress is proportional to strain rate, tau directly proportional to d theta by dt. Okay, let us write the next point. In this connection, fluid can also be defined as the state of matter that cannot sustain any shear stress. Tau 1 by dt1 अब इसका मतलब क्या है, देखो ये वाला पॉइंट तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इन दिस कनेक्टिंग फ्लूइड कैन in this connection, fluid can also be defined as the steady state of matter that cannot sustain any shear stress. इसका मतलब है कि जितना भी shear stress दे दो, जितना भी चप्पू चला लो बोट में, ये जो फ्लूइड है जो इस जगह पे था, ये इस जगह से इस जगह पर जाएगा ही। इसको ही तो हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। जब एक पार्ट से हम दूसरे पार्ट में बोलते हैं, इसको तो हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। मेटल में क्या होता था, मेटल में ये इस पॉइंट, ये वाला इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक नहीं जा सकता था, मतलब एक लिमिट तक ही जा सकता था, उसको हम एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन बोलते थे। उसके बाद ज़्यादा रेसिस्टेंस आ जाता था, ठीक है ना। लेकिन फ्लूइड में कभी रेसिस्टेंस नहीं आता। फ्लूइड में तुम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जा सकते हो जितनी मर्जी हो, ठीक है। तो यही बोला है इस पॉइंट में कि इन फ्लूइड द स्टेडी स्टेट ऑफ मैटर दैट कैनॉट सस्टेन एनी शेयर स्ट्रेस। ओके, जितना शेयर स्ट्रेस दो उतना शेयर स्ट्रेस तुम दे सकते हो, और फ्लूइड कभी भी मना नहीं करेगा। अगर तुम एक चप्पू में हो, अगर तुम एक बोट में हो, और अगर उस बोट से तुम स्ट्रेस दे रहे हो फ्लूइड में, तो वो वाला फ्लूइड जो नीचे था वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाएगा ही जाएगा। उसमें कोई तरह का रुकावट नहीं आएगा, रेजिस्टेंस नहीं आएगा। वो वाला जो फ्लूइड है वो एक स्टेज से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला है, टाउ 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, टाउ 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी थीटा 2 बाई डी टी 2 फॉर अनस्टेडी स्टेट। ओके, मीन्स जब हम टर्मिनल फ्लो की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि फ्लूइड जब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक जाता है कभी कभी, तब क्या होता है, तब ना मतलब जो टाउ होता है, जो शेयर स्ट्रेस होता है, तब वो डी थीटा का रेट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अनस्टेडी स्टेट में कोई फिक्स नहीं है ना कि कितना डिफॉर्मेशन आएगा, कितना शेयर स्ट्रेस देने से। वो तो फ्लो रेट पे डिपेंड करता है कि कितना फ्लो हो रहा है, जो मतलब जो फ्लूइड है उसका कितना फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है और कितना शेयर स्ट्रेस देना पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि टाउ 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी 1, टाउ 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा 2 बाई डी टी 2। ओके, अभी अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। मतलब शॉर्ट नोट्स में ये लिख सकते हो कि जो सॉलिड होता है उसमें टाउ जो होता है वो डी थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अपोजिट द एक्सटर्नल शेयर फोर्स, जिसमें मतलब जो टाउ होता है, मतलब जो शेयर स्ट्रेस होता है वो एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर जो एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन होता है वो शेयर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन वहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स काम करता है, एक्सटर्नल force opposed by resistance,
ये वाला शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, और लिक्विड्स में इंक्लूड कर सकते हो कि जो टाउ होता है वो डी टी था बाई डी टी के बराबर होता है, और यहाँ पे डजंट अपोजेस द एक्सटर्नल फोर्स यानी shear force. Okay, now talking about the next thing, जो फ्लूइड्स होता है ना, जो फ्लूइड्स होता है वो दो तरीके के होता है, ठीक है। वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो लिक्विड्स होता है या फिर वो गैसेस होता है, ठीक है। अभी लिक्विड्स और गैसेस में डिफरेंस क्या है? हाँ यार, यही पढ़ना बाकी था। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लिक्विड्स और गैसेस में डिफरेंस ढूंढ रहे हैं, ये करना बाकी था। अरे पढ़ लो यार, इंजीनियर हो, सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है। नाउ जो लिक्विड होता है ना, वो उसमें सिर्फ एक तरीके का फोर्स ऊपर काम करेगा, जो होता है एटमॉस्फेरिक फोर्स, ठीक है, यहाँ पे काम करेगा। लिक्विड्स एक तरीके के ना कंप्रेस्ड एयर होते हैं, मतलब उनमें इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस होते हैं वो एयर से कम होते हैं, ठीक है। अभी अगर लिक्विड को हीट करोगे ज़्यादा, ठीक है, अगर लिक्विड को तुम ज़्यादा हीट कर दोगे तो क्या होगा पता है? यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो कितने क्लोज है, उसमें एक्साइटेशन बढ़ जाएगा, और उन मॉलिक्यूल्स में ना गैप ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और गैप ज़्यादा बढ़ने से ना वो गैसेस की प्रॉपर्टीज शो करना स्टार्ट कर देंगे। गैसेस की प्रॉपर्टीज शो करने से है ना वो लोग उड़ जाएंगे, ठीक है। तो लिक्विड एक तरीके का मतलब गैस ही होता है जो ज़्यादा कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। अब गैसेस में क्या होता है? गैस में वही बात है, गैस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब स्पेसेस होते हैं वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा होने की वजह से वो कभी भी सिर्फ कंटेनर में रह ही रहेंगे। अगर कंटेनर ओपन है तो वो उड़ जाएंगे, ठीक है। फ्लूइड की तरह एक जगह पे नहीं रहेंगे, वो उड़ते रहेंगे, ठीक है। मज़ा आ रहा है ये ड्रॉ करने में, हाँ जी। हाँ, तो जो गैस होता है वो ऐसे उड़ते रहेंगे, ठीक है। वो लिक्विड की तरह एक जगह पे नहीं रहेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है वो लिख लो। ए लिक्विड forms a free surface but गैस doesn't। जो एक लिक्विड होता है वो एक फ्री सरफेस बनाता है, ठीक है। फ्री सरफेस का मतलब ये वाला सरफेस जिसमें ऊपर है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। लेकिन एक गैस में ना कभी भी एक फ्री सरफेस नहीं मिलेगा, गैस हमेशा उठते रहेंगे, ठीक है। उसमें कभी भी फ्री सरफेस आपको नहीं मिलेगा कि आप फ्री सरफेस के ऊपर कुछ कर लो, आप एक नाव बिठा दो और उसमें चप्पू चलाते रहो, वो वाला नहीं मिलेगा। गैस हमेशा उठता रहेगा, ठीक है। लेट्स राइट द नेक्स्ट पॉइंट। इफ ए लिक्विड container is tilted, it develops a shear stress and liquid moves to form a horizontal free surface। अभी ये वाला पॉइंट समझना, ये वाला पॉइंट ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मज़ा आएगा समझने में। ओके, ये दूसरे स्लाइड में समझाता हूँ। देखो, अभी ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है और इसमें पानी है। रुको यार, इसको कॉपी कर लेता हूँ, काम आएगा बाद में। कॉपी।
Okay, now let this be one surface. Okay. ये अभी हमने एक टेबल पे के ऊपर रख दिया. ओके, दिस इज अ टेबल. ओके, अभी इस वाले ग्लास को लो और ऐसे टिल्ट कर दो. ठीक है, इस वाले ग्लास को लो और इसको टिल्ट कर दो. वेट, ऐसे टिल्ट कर दो. ठीक है, जब ऐसे टिल्ट करोगे ना तब पता है क्या होगा. तब जो पानी था ना, जो ऐसे था वो ऐसे आ जाएगा. ओके, वो ऐसे आ जाएगा. अब पता है ये क्यों हुआ. हाँ, अगर तुम लोग इसको विजुलाइज करने की कोशिश करोगे कि ये क्यों हुआ, तब तुमको समझ में आएगा कि जब हम पानी को, जब हम ऐसे लेते हैं, जब हम पानी को ऐसे धीरे धीरे ऐसे मूव करते हैं, तब ना जो वाटर होता है वो कुछ दूसरी तरीके से बिहेव करने लगता है. देखो, ये पानी है, इसको मैंने टिल्ट किया, ऐसे किया, तो पता है क्या होता है. जो फोर्स होता है ना, जो mg होता है, वो हमेशा ऐसे ऐसे लगता है. पहले ना ये ऐसे लग रहा था. ठीक है, अभी जब ये ऐसे लगना स्टार्ट हुआ ना वर्टिकली, तब ये वाला फोर्स क्या करता है, ये कंपोनेंट्स बनाने लगता है. एक तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे एक कंपोनेंट बनता है और यहाँ पे एक कंपोनेंट बनता है. ठीक है, इस वाले कंपोनेंट की वजह से ना ये वाला पानी जो होता है वो यहाँ पे मूव करने लगता है. ओके, एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो ऊपर वाला पानी होता है, हाँ, जो ऊपर वाला पानी होता है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है. जो ऊपर वाला पानी होता है वो इस वाले डायरेक्शन में मूव करने लगता है. जब ये वाला पानी इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है तब ऊपर के जो पानी थे वो यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, कंटेनर को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं. कंटेनर बेटा छोटा बढ़ गया था. तो ये वाला जो पानी होता है ना, ये वाला पानी कंपोनेंट की वजह से ये वाला पानी यहाँ पे आने लगता है. ठीक है, क्योंकि पहले ही बोला गया था कि जो पानी होता है वो कभी भी शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर पाता है. ठीक है, अगर शेयर स्ट्रेस लगता है तो वो पानी डिफॉर्म करेगा. ठीक है, करेगा ही करेगा. तो जब ग्रेविटी लगता है तब ये वाला पानी जो होता है ना, कंपोनेंट की वजह से ये वाला पानी यहाँ पे आ जाता है. और ऊपर के जितने भी पानी होते हैं ना, हाँ, जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हैं, उनमें सब में जो कंपोनेंट लगता है, कंपोनेंट की वजह से ये वाला बेसिकली यहाँ पे आने लगता है. ठीक है, समझ रहे हो ना. ये वाला ऊपर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वाले पानी सब यहाँ पे लगते हैं until they are basically perpendicular to the force of gravity. Okay, component is the reason why the water that is there comes downwards and they again form a flat surface like this. Okay, this is the मेन रीज़न. ओके, यही पे मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ ए liquid container is tilted, it develops a shear strain and the liquid moves to form a horizontal free surface. So this is what it is told in this section. Okay, अभी ना हम लोग कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं. हम अभी कंटिनम के बारे में बात करेंगे. ठीक है, व्हाट इज कंटिनम. वेट, कंटिनम